کوئی آدمی اگر عقیدے کی بنیاد پر یا شخصیت کی بنیاد پر کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اسی کے اوپر پلٹتی ہے. جیسے کوئی آدمی غصے میں کہے یہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل خبیث ہے، تو یہ خبیثوں کو گالی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم خبیث ہے ہی نہیں ہے. جو خبیث ہو، جو پائخانہ کھاتا ہو، جو قرآن کو روندتا ہو، جو قرآن کی توہین کرتا ہو، جو قرآن کی آیتوں کو گلے میں لٹکا لٹکا کر پیشاب و پائخانوں میں لے جاتا ہو، خبیث تو وہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ خبیث ہم ہے ہی نہیں ہے. یہ گالی انہی کی اوپر لوٹ کر پڑتی ہے. ایسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. اللہ نے کس طریقے سے قریش کی لعن و طعن اور غیبت و چغلی و گالی کو کس طریقے سے انہی پر پھیر دیا ہے. وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں. ہم تو مزمم ہے ہی نہیں، ہم تو محمد ہیں. ہم تو محمد محمدہ تعریف کرنا، محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. میں مطلب بتلا رہا ہوں، معنی بتلا رہا ہوں. جب آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تو عرب میں ہلچل مچ گئی مکے میں. ایسا نام محمد جس کی تعریف کی جائے، لوگ تعجب کر رہے تھے کہ دادا نے یہ نام ڈھونڈا تو کہاں سے ڈھونڈا، عبد المطلب یہ نام کہاں سے لائے. اور جب آپ کو نبوت ملی، رسالت ملی، پیغمبری ملی، تو لوگ گالی دینے لگے اور کہنے لگے اس کو کوئی محمد نہ کہے. محمد کہتا ہوں تو تعریف ہوتی ہے، یعنی تعریف کیا ہوا، اس کی تعریف نہیں. کوئی آدمی آج کے بعد اس کو محمد نہ کہے، بلکہ عرب کے کافروں نے کیا کہا، یہ محمد نہیں، اس کا نام مزمم ہے. مزمم رکھ دیا. مزمم جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے. صحابہ کو بہت برا لگا، بہت برا لگا کہ میرے نبی کو مزمم، میرے نبی کی یہ کہہ رہا مزمم بہت یعنی مذمت برائی کی گئی ہے، اس کی پوری دنیا میں اس کی برائی ہوتی ہے. وہ برائی صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے. اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی یہ جملہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، آپ کا نام محمد ہے، یہ مزمم کہتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، دینے دو، میرا نام تو مزمم نہیں ہے. کیا جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. اللہ نے قریش کی لعنت کو اور قریش کی گالیوں کو کیسے انہی کے اوپر پھیر دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر عقیدے کی بنیاد پر یا شخصیت کی بنیاد پر کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اسی کے اوپر پلٹتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ نے پھیر دیے ان کی گالی کو، ان کی لعنت طعن کو. وہ کہتے ہیں، وہ لعن و طعن مزمم کو بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ مزمم کا برا کرے. وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں. کیا یسبون مزممن وانا محمد، وہ تو مزمم کو گالی دیتے ہیں. میرے دادا نے میرا نام مزمم رکھا ہی نہیں ہے، یہ گالی مجھ پہ پڑتی ہی نہیں ہے. میرا نام تو محمد ہے، یہ لینا ہی پڑے گا ان کو. اور جب وہ محمد کہیں گے تو تعریف ہونا ہی ہونا ہے. کیسے اللہ نے ان کی لعن و طعن کو اور ان کی گالی کو پھیر دیا ہے. جیسے کوئی آدمی غصے میں کہے یہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل خبیث ہے، تو یہ خبیثوں کو گالی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم خبیث ہے ہی نہیں ہے. جو خبیث ہو، جو پائخانہ کھاتا ہو، جو قرآن کو روندتا ہو، جو قرآن کی توہین کرتا ہو، جو قرآن کی آیتوں کو گلے میں لٹکا لٹکا کر پیشاب و پائخانوں میں لے جاتا ہو، خبیث تو وہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ خبیث ہم ہے ہی نہیں ہے. یہ گالی انہی کی اوپر لوٹ کر پڑتی ہے. ایسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. اللہ نے کس طریقے سے قریش کی لعن و طعن اور غیبت و چغلی و گالی کو کس طریقے سے انہی پر پھیر دیا ہے. وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں. ہم تو مزمم ہے ہی نہیں، ہم تو محمد ہیں، ہم تو محمد ہیں. تو میرے بھائیو ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، کتنا زبردست پوائنٹ ہے. تو یہاں پر ایک نراشنس ہے، نر کے معنی آدمی اور آشنس معنی جس کی بہت تعریف کی جائے. وہ نام نراشنس کا وید میں کہا آیا ہوا ہے. وہ وید ہے اتھرو وید، کانڈ نمبر 20، سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1. کانڈ 20 سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1، جس میں نراشنس کا نام اس طریقے سے آیا، ایدم جناؤ بشرت نراشنس تشوشیت سشکم سہسترا نویتم چکور مروشمے دھوددمہے. بڑا پیارا منتر ہے، اتنا کھینچ کر تو کوئی پنڈت بھی نہیں پڑھ پائے گا.
जनाओ बशरुत नराशन से तशविशियत इदम आए लोगो जना जनता आए लोगो ओ बशरुत कान के नीचे गौर से सुनो नराशन से यानी मोहम्मद आएंगे नराशन नर की माना आदमी आशन जिसकी बहुत तारीफ की गई हो बहुत तारीफ किसकी की गई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरा मुझे बताओ कायनात पर नजर डाल के देखो कि सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हो रही है वो अलग बात है कि नबी को छोड़कर लोग किसी का भी नाम ले लेकिन अल्लाह को नबी के अलावा किसी का नाम भी गवारा नहीं है अल्लाह को अगर किसी का नाम नबी के बाद लेना गवारा होता तो हजरत अबू बकर का नाम कुरान में आया होता हजरत उमर फारूक का नाम कुरान में आया होता हजरत उस्मान गनी का नाम कुरान में लिया होता हजरत अली का नाम कुरान में लिया होता लेकिन अल्लाह तो अपने नबी का इतना नाम लेता है और अल्लाह तो अपने हबीब का इससे इतना प्यार करता है इतनी मोहब्बत करता है मेरे भाइयों उसने गौर करो कि नबी के अलावा किसी का नाम भी लेना गवारा नहीं किया है किसी का नहीं हाँ हम गैरों के नामों पर मरते हैं करते हैं लड़ते हैं लेकिन अल्लाह ने तो किसी का नाम हजरत अबू बकर उमर तक का नाम लेना गवारा नहीं किया है और फिर तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचो कि नबी का नाम कितना लिया जा रहा है गौर करो ये इस वक्त मेरी घड़ी में 10:18 हो रहे हैं इस वक्त कहीं ईशा की नमाज का वक्त हो रहा होगा हमारे यहाँ ईशा हो चुकी है आप चले जाइए किसी जगह इस वक्त ईशा की नमाज का वक्त हो रहा होगा और वहां पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहीं ईशा है तो कहीं ज़ुहर भी हो रही होगी कहीं असर भी हो रही होगी कहीं मगरिब भी हो रही होगी कहीं ईशा भी हो रही होगी हाँ कहीं फजर भी हो रही होगी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है एक ईसाई राइटर लिखता है कि जितना नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस दुनिया में लिया जाता है कायनात के अंदर इतना नाम किसी हस्ती का किसी इंसान का नहीं लिया जाता है टेली कर लो मिला लो कैलकुलेट कर लो सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जाता है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नमाज में नाम अल्लाहु अकबर अगर अल्लाह का नाम लिया है तो नमाज खत्म करने से पहले दरूद में नबी का नाम लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नमाज से बाहर रहो जो दरूद पढ़ना चाहो पढ़ लो वो मेड इन इंडिया दरूद है वो इंडिया के मौलवियों के बनाए हुए दरूद है जो चाहो पढ़ लो इस्लाम का क्या जाता है लेकिन नमाज में पढ़ना है तो नबी का सिखलाया हुआ दरूद ही पढ़ना पड़ेगा दुनिया के इन कठमुल्लाओं का बनाया हुआ दरूद नहीं चलेगा नमाज में तुम्हें वही दरूद पढ़ना पड़ता है जिस दरूद को हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों वो दरूद वही है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाया है मेरे भाइयों वहां अगर ये दरूद पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबिना व शफीना व मुर्तज़िना ये दरूद वहां नहीं चलेगा जब वो दरूद वहां नहीं चल सकता है इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वो दरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया ही नहीं है तो गौर करो फिर मेड इन इंडिया का बनाया हुआ दरूद क्यों पढ़ते हो इस्लाम में अगर कानून चलेगा तो अरब का चलेगा इस्लाम में निजाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तानी करेंसी चलेगी सऊदिया में जाना है तो रियाल चलेगा दुबई में रहना है तो दिरहम चलेगा अगर मुसलमान कहलाना है तो कानून जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा इस्लाम में सिक्का चलेगा तो रब का चलेगा रब के फरमान का चलेगा आमिना गिलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा इंडिया का खुद साचे ढांचे नहीं चलेंगे मेरे भाइयों इतनी सी बात कही जाती है बुरा लग जाता है हम तो नबी की तारीफ कर रहे हैं हम तो गैर मुस्लिमों को भी बतला रहे हैं हमसे चाहे जो कह लेना कि ये नबी को नहीं मानते हम तो ये साबित कर रहे हैं कि मेरे नबी तो गैर मुस्लिमों के लिए भी आए थे उनकी किताबों में भी मौजूद है वो तो गैर मुस्लिमों के लिए भी रसूल बनकर आए थे तुम अपनों को अपना न बना सके हम तो गैरों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दे रहे हैं हम तो गैरों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं का दामन थाम लो हाँ और दामन भी इसलिए कि इन्हीं की किताबों में लिखा अगर उनकी कुटिया में अहमद की कुटिया में अहमद के रास्ते पे न चले तो क्या होगा स्वर्ग में नहीं जाओगे या मौत को नहीं जीतोगे यानी तो
तुम स्वर्ग यानी जन्नत का मुंह नहीं देखोगे, मुसलमान नहीं बनोगे। पता ये चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो लोग अपनी मजहबी किताबों में नाम पा जाएं। आइए जरा इस मंत्र पर गौर करें। पहला मंत्र क्या पढ़ा था मैंने? अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद का नाम, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को नाश किया है, अंधेरे को मिटाया है। और जितना ज्यादा अंधेरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिटाया और कौन मिटाएगा। इसीलिए आपको मालूम है जब रात आती है तो अंधेरा छा जाता है और जब सूरज निकलता है तो तारीकी मिट जाती है। जिस तरह सूरज की रोशनी रात की तारीकी को मिटा देती है उसको सूरज कहा है, तो अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को सिराज मुनीर कहा है। जिस तरीके से आसमान का सूरज रात की तारीकी मिटाता है, हमने तुम्हें सिराज वहाज, सिराज वहाज ये आसमानी सूरज दिया है। जब ये निकलता है तो रात की तारीकी मिट जाती है। तो उसने अपने नबी को सिराज वहाज नहीं कहा बल्कि उसने अपने नबी को सिराज मुनीर कहा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दाई दिया है, सिराज मुनीर। आसमान के सूरज को सिराज वहाज कहा और नबी अकरम को सिराज मुनीर कहा। आसमान का सूरज जब निकलता है तो रात की तारीकी मिट जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नबी बने और रसूल बने तो आपने गुनाहों की तारीकी को मिटा दिया, आपने गुनाहों के अंधेरे को खत्म कर दिया, आपने गुनाहों की गलाजत और गंदगी को मिटाया। आसमान का सूरज निकलता है तो दिन में कोई डकैती नहीं डालता, दिन में कोई जराइम का इर्तिकाब नहीं करता। सूरज की रोशनी जराइम के इर्तिकाब को रोक देती है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत ने गुनाहों के कामों को रोक दिया है। फर्क इतना है, ये सिराज वहाज इसलिए है कि ये दिन में निकलता है, रात में फायदा नहीं पहुंचाता है। लेकिन मोहम्मद सिराज मुनीर इसलिए है कि आपकी तालीम दिन में भी फायदा पहुंचाती है और रात में भी फायदा पहुंचाती है। आपका जिक्र खैर दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ये सिर्फ दिन में फायदा पहुंचाता है आसमान का सूरज, और मेरा नबी वो सूरज है जो रात में भी जिसका जिक्र होता है और रात में भी उसका नाम लिया जाता है। हजरत आयशा इसीलिए आसमान के सूरज से अपने सूरज को, हजरत आयशा आसमान के सूरज से अपने सूरज यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज्यादा बेहतर कहती थी और कहती थी ये शेर पढ़ते हुए, ली शम्सुन वलिला की शम्सुन, ली शम्सुन वलिला की शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, इन्न शम्सा ततलू बाद फज्रिन, शम्सी तालिउन बाद लिशा। आसमान तेरे पास एक सूरज है और आयशा तेरे पास भी एक सूरज है। ली शम्सुन वलिला की शम्सुन, आसमान एक सूरज रखता है, मेरे पास भी एक सूरज है। हजरत आयशा कहती है मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? इन्न शम्सा तदलू बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, आसमान का सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी तालिउन बाद लिशा, और मेरा सूरज इशा के बाद आता है, मेरा सूरज इशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाते हैं। यानी हजरत आयशा ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने शौहर को सूरज कहा है, वो भी अपना, और यहाँ तक कहा कि आसमान के सूरज से मेरा सूरज बेहतर है और ये रात में निकलता है। मेरे भाइयों ये सूरज वो है जो रात में भी फायदा पहुंचाता है और दिन में भी फायदा पहुंचाता है। इसलिए ये सिराज मुनीर सिराज वहाज से अफजल है। ये है अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेगा, हेतु कृत सबका हितकारी होगा। जैसे सूरज की गर्मी सबको रोशनी देती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती, ऐसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जो ज्योति जो रोशनी लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, सबके लिए होगी। और गौर कीजिए इस मंत्र पर, तस्मिन्नंतरे मलेक्षाचारो समन्वितः महामद विखयात शिष्यशाखा समन्वितः, तस्मिन्नंतरे, हाय लोगो महत्वपूर्ण बात को गौर से सुनो। मलेक्ष अनपढ़ों के अंदर आचार आएंगे, गुरु आएंगे। कितना प्यारा मंत्र है। काश हमारे हिंदू भाई अपनी किताबें पढ़ते, कुरान समझ में नहीं आती है, हदीस समझ में नहीं आती है, और आए भी कैसे? यहाँ मुसलमानों के समझ में नहीं आती, गैर मुस्लिमों के समझ में क्या आएगी? यहाँ बड़े बड़े मौलवियों ने कह रखा है कि कुरान समझना
समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसको तो उलमा समझते हैं। अफसोस तो ये है कि जब हम नहीं समझ सकते मुसलमान होकर, तो फिर गैर मुस्लिम क्यों जहन्नम में जाएगा? फिर वो कैसे समझेगा? उसको क्यों कहते हो? कुरान तो कह रहा वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान से ज्यादा आसान किताब तो हमने उतारी ही नहीं। और तुम कह रहे हो कि हमारे समझने की बात नहीं, हमारे समझने की किताब नहीं।